मुझे देख पा रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं तो मुझे बताइए। और आप कहाँ से ज्वाइन हुए हैं वो भी मुझे बताते रहिए। आपको अपना सिटी का नाम रख देना पड़ेगा और वो देते रहेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ से यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। माई सेल्फ डॉक्टर निश्चल भट्ट। आई एम प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद, गुजरात। I am practicing for last 20 years in my own private children hospital. I was the president of the Academy of Pediatrics Gujarat, that is the Pediatric Association of Gujarat, in the year 2018. I have also done my Train the Trainer program under Jack Canfield USA, and I am the certified trainer for the success principles in India. In 2012, I started my own workshops in the name of Parent Teens, that is, parenting teenagers and young children. I stay with my wife Neha. She is a fashion photographer and social entrepreneur. And my son is 19 and a half years old, and he is studying in first year MBBS in the VS Hospital NHL Municipal Medical College in Ahmedabad itself. So, this is about my life, my introduction. My life purpose is to create awareness through education and training in people and then motivate them to act. I know if this two is combined, then it can really create miracles in people's life. So, I would like to invite you to fully participate and be with me in next 40-45 minutes for our webinar. When people live their life fully with their full potential, they can achieve whatever they want to achieve. Now, why this session? Why we want this session to happen? So that there was one question from Shraddhanjali Mondal. How can parents come out of the societal change that is affecting our children? See, if we think about our society 25-30 years back, this kind of parenting session was not required. What has changed in last 20-25 years is amazing shift in the way we live our life. In the past, we used to live in a joint family where in a same house 5-6 children we grow simultaneously and no one will know they have already grown. Now we are staying in a nuclear family. Mostly we have only single child or maybe maximum two, and sometimes we are a single parent. The media has become a integral part of our life. Media has come into our bedroom also. The TV, internet, smartphones, laptop, tabs, and everything is really encroaching our private life. In the past, the life used to be very, very slow. Now we are really running from one place to another place. Yeah, but last 4 months, things has again restarted to slow down. And I think to live life happily, we have to slow down in our life. And that will really give an excellent result to us. Another change which has happened is both the parents are working. So you have less and less time with your child, and you try to compensate with some present in place of your presence. So these are the major change which has happened in last 20 years. These children have become very, very smart using smartphones. And if we as a parent do not become smart with them, then things may not work very powerfully. So we have to keep up the speed of the life and become smart with our children and become very smart parent so we can parent them very well. So as we always say that if you want to become a peon or a pilot, you need to have training. So why there is no training for becoming a parent, which is the most important, most crucial role as a human being? So please just be with me and you will have amazing 45 minutes that will might change
by giving you tools and techniques how you parent your child in this 21st century very, very powerfully. So, this is very, very critical. Now, we have got many questions from the audience, and I will definitely read out those questions so that we come to know what are the common queries which parents have. Dipti Jahagirdar says, how to deal with child who throws and breaks the things when angry. He is same like his father who is no more. Tried many ways, does not work, need advice. Vidhi Kaur says, how to effectively raise kids with a gap of 2.5 years single handedly. My boy is 4 year and girl is 1.5 years. Saloni Bansal says, how to deal with anger issues. My son is not taking interest in writing. How can I make writing fun for him? Purnima Bhushan Bhanat says, my daughter gets short tempered with silly reasons in such a way that she does not know what is she doing. What should I do with her? Dipti Jain says, 10-year boy replies back for everything and does not want to follow whatever is said, argues and nags for everything, kindly guide. Varsha Kale says, how to say no to the child. Deepika, I am concerned about the stubbornness and mobile addiction. Please suggest how to make these things positive in my child. Bhagyashri Desai says, my 4.5-year boy does not reply quickly if we call him. How to gather his attention? And Khatija says, sleeplessness in kids is becoming a real problem. Please suggest. If you see and combine all these questions that mothers have sent, we can say these are discipline issues. So, how can we make our child disciplined so that they do what is required to be done by them and we don't have to be behind them? Now, if we understand the psychology of the younger children between the age of 2 to 10 years, their normal psychology is negative. They are extremely stubborn और उनको जो चाहिए वो जिद से चाहिए. Tantrum is very, very normal in these children. I always tell to mother and father, if your child is ziddi, if he shows tantrum, if he is not listening, if he is very stubborn, be happy, first of all. Because this stubbornness or the tantrumness of the child goes hand in hand with his intelligence. So if your child is not doing this, like he is not stubborn, he is not showing tantrums, he is not getting angry, then be careful. Your child has some issues. Go and show it to your pediatrician. So if your child is stubborn, getting angry frequently, he does not follow your command the way you say, or he is very showing tantrums, then be happy that he is intelligent enough to do all these things, to get things done. Now, how to handle, that is the biggest issue. Now I give you simple 3 formulas, and if you follow this formula rigorously, you will definitely see a new child in your home in next 15 days. That is for sure. And this is my 20 years experience. The first and foremost principle is, majority of the time, many children's many behavior are not that of a harmful substance. ऐसा जैसा बिहेवियर बच्चे का जो आपको इरिटेट करता है, लेकिन वो बच्चे के लिए मेंटली या फिजिकली हार्मफुल नहीं है, हमें उस बिहेवियर को इग्नोर करना सीखना है. हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डेली क्या करते हैं, अगर बच्चा कुछ भी ऐसा कर रहा है जो हमें पसंद नहीं आ रहा है, हम उसको तुरंत बोलते हैं मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हो, पता नहीं चलता ऐसा नहीं करना है. अब क्या हुआ, आपने जब ऐसा बोला कि मत करो, आपने उसके उस एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया, माने उसका आपका अटेंशन उसको मिला और वो उसी के लिए कर रहा था. अब उसको आपका अटेंशन मिल गया तो वो और ज़्यादा करेगा बिकॉज उसमें उसको मज़ा आ रहा है.
मॉर्निंग से इवनिंग तक दैट चाइल्ड इज प्लेइंग a table tennis or a tennis with you. He does something, you say no. He does something, you say no. He does something, you say no. And that becomes play for your child. He is happy enjoying in the evening, and you become very frustrated. What is happening? My child is not following my commands. But if you learn to ignore this behavior, those behavior which are really disturbing but not harmful to the child and not harmful the people around them, start ignoring them. 80% of the child behavior is come in this category. If you ignore those things for 15 days, child will start realizing that this behavior is not getting attention. Gradually he will stop doing those behaviors. अगर वो ऊपर से नीचे कूद रहा है और आप उसको बोलोगे क्यों कूद रहे हो, मत कूदो, दे आर नेगेटिव साइकोलॉजिकली. दे वॉन्ट टू डू एग्जैक्टली ऑपोजिट वॉट यू टेल देम टू डू. सो उसके ऊपर 2-5 मिनट ध्यान ही मत दो एंड सी टू इट कि उसको लगे ना. एंड देन देखोगे वो 5 मिनट में थक जाएगा क्योंकि उसको मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. वो आराम से बाजू में बैठ जाएगा या कुछ और अपने आप करने लगेगा. बट जैसे आपने बोला क्यों कर रहे हो तो वो और ज़्यादा करने लगेगा. सो दिस इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल. इग्नोर दोज बिहेवियर विच आर frustrating, disturbing, but not harmful to the child mentally and physically. Second principle. Second principle says that during the day, find out at least 10 things that is praiseworthy. जो आपको पसंद है कि आपका बच्चा ऐसा कुछ करे, उस चीज़ को स्पेसिफिकली, उस बिहेवियर को प्रेज करना चालू करिए. आप देखोगे अपने दिन में हम यूजुअली बच्चे के अच्छे चीज़ों को प्रेज नहीं करते हैं. अब उसके ऊपर हमारा अटेंशन नहीं जाता है, इसलिए वो डाई आउट हो जाता है. अगर आपका 3 साल का या 5 साल का या 7 साल का बच्चा आपके साथ 15 मिनट या 10 मिनट शांति से बैठ लेता है, तो उस बिहेवियर को भी आपको उसको प्रेज करना है. वाह बेटा, तुम 5 मिनट 10 मिनट मेरे साथ शांति से बैठे, मुझे बहुत अच्छा लगा. बिकॉज आप समझिए उस एज में 10 मिनट के लिए बैठना भी उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है. अगर उसने वो टास्क अचीव कर लिया, उसका मतलब है कि उसको प्रेज मिलना ही चाहिए. हमें बच्चे को प्रेज नहीं करना है, उसके उस बिहेवियर को प्रेज करना है. कभी एक दिन उसने आके अपनी चीज़ें ठीक से रख दी, या कभी उसने अच्छे से होमवर्क कर लिया, या उसने कभी आपसे प्यार से बात कर ली, उस चीज़ को नोटिस करके प्रेज करना चालू करिए. दिन में एटलीस्ट 10 चीज़ें ऐसी ढूंढिए. ढूंढना पड़ेगा बिकॉज हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है उस चीज़ के ऊपर कि उसको आप प्रेज करेंगे. एंड देन ग्रेजुअली जो चीज़ आप प्रेज करेंगे, नोटिस करेंगे, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी. सो दिस इज सेकेंड प्रिंसिपल. जो चीज़ बच्चे की वो जो कर रहा है, वो जो आपको पसंद आ रही है, उसको ढूंढ के एटलीस्ट दिन में 10 बार उसके उस बिहेवियर को आपको प्रेज करना है. एंड लास्ट, ऐसी कई बिहेवियर बच्चे की होती है जो इग्नोर नहीं की जा सकती. जैसे गुस्सा होके कोई चीज़ फेंकना, या अपशब्द बोलना, या किसी के ऊपर हाथ उठाना. 3-4 ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके साथ हमें एक नेगेटिव साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस कनेक्ट कर देना है. जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपके बच्चे ने गुस्से में आके टीवी का रिमोट फेंका. अब उस बिहेवियर के साथ एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस अटैच कर दीजिए जिसकी उस बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट होती है. जैसे आपका 4.5 या 5 साल के बच्चे को टीवी में एक पर्टिकुलर कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है. आपको उसको इस चीज़ के साथ कनेक्ट कर देना है कि बेटा आज आपने ये चीज़ फेंकी है ना, आपको आज मैं कार्टून नहीं देखने दूंगा. और वो आपको किसी भी हाल में फॉलो करना है. अगर आप ये चीज़ 15 दिन कर लोगे, 3 बिहेवियर जो आपको बच्चे के लिए हार्मफुल है, उसके साथ 3 कॉन्सिक्वेंसेस, सिर्फ आप देखोगे ना तो 2-3 बिहेवियर ही ऐसे होते हैं बच्चे की जिसको हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है. बिकॉज वो बच्चे के लिए या किसी और के लिए मेंटली या फिजिकली हार्मफुल होता है. देखिए, मैंने इसमें कभी भी गुस्सा करने के लिए नहीं बोला है, कभी भी पनिशमेंट करने के लिए नहीं बोला है. ये ज़रूरत ही नहीं होती है. हम लोग पेरेंटिंग फॉर पीस करके एक बड़ी मूवमेंट चला रहे हैं, और उसमें द प्रिंसिपल इज़, अगर हम अपने बच्चे को प्यार से स्ट्रिक्ट होना सीख के सिखाएंगे और इसके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, उसके ऊपर शाउट नहीं करेंगे, उसको कोई पनिशमेंट नहीं देंगे,
तो यही बच्चे आगे जाके वर्ल्ड पीस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने उसको शाउट किया या हाथ उठाया या पनिशमेंट दिया और उसने कोई काम कर लिया, तो उसने सीख लिया कि आगे जाके मुझे कुछ काम करवाना है तो मैं उसी तरह से काम करूँगा। यानी इसका मतलब है कि अगर आपका बच्चा सामने जवाब दे रहा है या गुस्सा कर रहा है या आप ऐसा बिहेवियर कर रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कभी ना कभी हमने उसके साथ किया है, इसलिए वो रिवर्ट कर रहा है, नहीं तो वो कहाँ से सीख के आएगा। सो इफ यू डू दिस थ्री थिंग्स फॉर नेक्स्ट 15 days, बट यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ, बिकॉज अगर आपने कॉन्सिक्वेंस दिया हुआ है कि आज ये कार्टून देखने को नहीं मिलेगा और उसने रोना शुरू किया, और आप अगर 5 मिनट में बिल्कुल रिलीज हो गए और आपने वो कार्टून चालू कर दिया, तो वो फिर कॉन्सिक्वेंस आगे काम नहीं करने वाला है। इसमें एक क्वेश्चन भी है कि मेरा बच्चा ना नहीं सुन रहा है। वो ना इसलिए नहीं सुन रहा है कि हम अपनी ना के ऊपर कायम नहीं रहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम नो 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 यस पेरेंट हो जाते हैं। इसको इसलिए बच्चे को पता होता है कि मम्मा या पापा का एंड 11 नो तक का है, 12-13 में तो वो यस करने ही वाले हैं, तो वो तब तक पीछे लगे रहते हैं जब तक वो यस नो यस में कन्वर्ट नहीं होता। हमें क्या करना है, बिफोर वी से यस फॉर एनीथिंग और नो फॉर एनीथिंग, 1 या 2 मिनट सोच लीजिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, और अगर सही है तो मैं इसके ऊपर कायम रह पाऊंगा या नहीं। अगर मैंने यस बोला तो मुझे वो इमीडिएटली करना है, और अगर मैंने ना बोला तो वो कुछ भी करे, भले ना घंटा रोता है। बच्चे के रोने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं है। बच्चे का रोना उसकी एक लैंग्वेज है, बिकॉज उसको अपने जो फीलिंग्स हैं उसको वर्ड्स में कहना अभी तक नहीं आया हुआ है। तो उसके रोने के ऊपर इमोशनल होके हम उसको जो चीज़ उसको चाहिए वो दे देंगे, तो उसको पता चल गया कि ये तो अब रोने से मिलने वाली है। लेकिन उसको पता चलना चाहिए कि मैं अगर हंस के मांगूंगा तो मिल जाएगा, रोने के बाद तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आपकी नो को वो नो सुनना शुरू करेगा और आपकी यस को वो इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये चीज़ें करेंगे तो आपको डिसिप्लिनरी इश्यूज कभी नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए, सबसे पहले आपको बच्चे की जगह जाके सोचना पड़ेगा कि बच्चा ये चाहेगा कि नहीं चाहेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी मम्मी को उनके बच्चे खाना नहीं खाते हैं उसके बारे में काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं कि मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता है, कुछ भी बनाओ वो नहीं खाता है। जैसे थाली निकालते हैं वो दौड़ना शुरू कर देता है, उसको ज़बरदस्ती टीवी दिखा के या यूट्यूब वीडियोस दिखा के खिलाना पड़ता है। लेकिन हम सोचते नहीं है कि हम अपने बच्चे को खाना खिलाना क्यों चाहते हैं। अगर कोई मदर मेरे यहाँ आती है और मैं उनको पूछता हूँ कि आप क्यों चाहते हो कि आपका बच्चा खाना खाए, तो यूजुअल आंसर होता है न्यूट्रिशन तो ज़रूरी है ना, एनर्जी तो ज़रूरी है ना, उसका ग्रोथ कैसे होगा, उसको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, उसकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी। उसके बाद में अगर मदर को क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप खाना क्यों खाते हो, तो इमीडिएटली आंसर आता है भूख लगती है ऐसे। उसका मतलब है कि बच्चा खाना खाए उसके रीजंस आपके बिल्कुल अलग है, और मैं खाना खाऊं उसका रीज़न बिल्कुल अलग है। आजकल के बच्चों को खाना खाने के साथ हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन का रिलेशनशिप ही नहीं है, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि खाना क्यों खा रहे हैं वो लोग। हम हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चे को खाना खिला रहे हैं। अगर उसको पता चला कि खाना खाना मेरे लिए ज़रूरी है और खाना खाने से मुझे मज़ा आ रहा है, ये दो ही चीज़ आपको अपने बच्चे को लाइफ में सिखानी है कि बेटा आप जो कुछ भी कर रहे हो ना अपने लिए कर रहे हो, और जो भी कर रहे हो वो अपने मज़े के लिए कर रहे हो। जिस दिन उसको इस बारे में पता चल गया, आपको उसके पीछे नहीं रहना पड़ेगा। वो पढ़ाई हो, अपनी चीज़ें ठीक रखनी हो, या टाइम पे खाना खा लेना हो, या टाइम पे सो जाना हो, लेकिन उसको पता ही नहीं होता है कि ये क्यों वो कर रहे हैं। जब तक मैं ज़्यादा भूखा नहीं रहूँगा, मुझे खाना खाना क्यों ज़रूरी है वो पता ही नहीं चलेगा। जब तक मुझे मेरी मम्मा 45 मिनट, घंटा, 1.5 घंटा पीछे घूम के खिलाएगी, तो मैं 15 मिनट खुद क्यों खा लूँगा। जब तक मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वही मिलती रहेगी, तो वो मैं सारी चीज़ें अलग क्यों खाऊंगा जो मुझे पसंद नहीं है, भले ना न्यूट्रिशनली ठीक हो, वो मुझे कहाँ पता है। क्योंकि बच्चे को हम ये सब चीज़ें सिखा ही दे ही नहीं है। हमें क्या करना है, हर 3 घंटे
अपने बच्चे के साथ 15 मिनट हमने जो खाना बनाया हुआ है वो प्यार से लेके बैठना है। अगर वो आके खाए तो खिलाना है, नहीं तो छोड़ देना है। वापस 3 घंटे के बाद 15 मिनट, वापस 3 घंटे के बाद 15 मिनट। शाम तक पता चलने लगेगा भूखा रहना क्या है। उसके बाद अगर वो 3 ने वाले भी खाएगा तो उसको बहुत अच्छा महसूस होगा, पेट भर जाएगा। ही विल स्टार्ट लाइकिंग द फूड। मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम ये भी कंप्लेन करते हैं कि बच्चे बहुत चूजी हैं आजकल के खाने में। एक्चुअली बच्चे चूजी होते नहीं हैं, हम उनको चूजी होने देते हैं। उसको जो पसंद है वो खा तो लेता है, ऐसा करके हम वही चीज़ उसको देते रहते हैं और वो अलग चीज़ खाना सीखते ही नहीं है। हमें 1 हफ्ते तक ऐसा करना है कि सारी वेराइटीज़ का फूड बना के उसको ऑफर करिए। अगर वो नहीं खाता है, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। 1 हफ्ता, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। जिस मदर ने इस खाने के प्रिंसिपल को 1 हफ्ता स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, उसमें ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा खाए बगैर सो जाएगा, शायद आप भी नहीं खा पाओगे, आपका शायद 2-3 किलो वजन कम हो जाएगा, उसका शायद 500 के ग्राम्स वजन कम हो जाएगा, बट दैट इज़ फाइन फॉर बोथ, बिकॉज वो बिहेवियर चेंज कर रहा है। ग्रेजुअली ही विल स्टार्ट रियलाइजिंग, जब मैं सामने से जाता हूँ तो खाना मिलता है, खुद खाता हूँ तो मज़ा आता है, और खाने में ऑप्शन नहीं है, तो वो खाने की अहमियत अहमियत समझना शुरू कर लेगा। आज से 20-25 साल पहले मुझे याद नहीं है कि कोई ऐसे फोर्सफुली ज़बरदस्ती पीछे घूम घूम के खाना खिलाते थे। क्यों? जॉइंट फैमिली हुआ करता था, एक घर में 4-5 बच्चे हुआ करते थे। एक बच्चे को पता था कि अगर मैं नहीं खाऊंगा ना तो ये 4 मेरा वाला भी खा जाएंगे। आजकल के बच्चों को ये टेंशन नहीं है, बिकॉज एबंडेंस अवेलेबल है। इतना ज़्यादा, इतना वैरायटी का खाना अवेलेबल है कि खाने का इम्पोर्टेंस ही उनको पता नहीं है। तो हमें आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करके उनको ऐसे खाना खिलाना सिखाना है। तो आप अगर ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो वो आपकी नो सुनना सीख जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा। जैसे वो चीज़ें अपनी ठीक से नहीं रखता है तो क्रिएट अ कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे वो स्कूल से आके अपनी चीज़ें, अपने बैग्स, अपने शूज़, अपने सॉक्स या अपने क्लोथ्स ऐसे ही फेंक देता है, कोई बात नहीं, उसको वहीं पे रहने दीजिए। नेक्स्ट डे जब वहीं से वो गंदी चीज़ें उठा के स्कूल जाना पड़ेगा 2-3 दिन, 4th डे टीचर की नोट आएगी, बच्चे को पता चल जाएगा कभी ये चीज़ें ठीक से रखो, नहीं तो ये धुलेगी नहीं और गंदी ऐसे ही पहन के जाना पड़ेगा मुझे। सो व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर बिहेवियर, गुड बिहेवियर, good consequences, praise, behavioral praise. Not good behavior, negative consequences. And then you see, you have to be very very careful when you interact with your child. It is not child's misbehavior, it is our misbehavior after the child misbehaves which creates problem to the child. Child has right to misbehave because उसको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर हम भी शाउट करेंगे, हम भी गुस्सा करेंगे, हम भी हाथ उठाएंगे, हम भी उसको पनिश करेंगे, तो वो वही सीखने वाला है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू take care of these things, and then you see within 15 days you will have a new child who becomes responsible for his life, who does things because he wants to do, he will do things because he enjoy doing it. And then you see your parenting has become very easy because you have transferred your responsibility to your child. And then you just have to observe, you just have to support the child कि ये ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कहीं पे भी वो इम्प्रॉपर जा रहा है तो आप उसको वहाँ पे बात कर सकते हो कि बेटा ऐसे नहीं, अब ऐसे कर लो। And gradually the things will become very 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 harmonious in the child. So a healthy child will become a happy family, will become a harmonious nation, and that way we can definitely work very well. So I hope जो disciplinary issues थे उसके बारे में मैंने बता दिया। बच्चे का एंगर अगर है, इग्नोर करना सीख जाइए। उसका एंगर अगेन इज अ लैंग्वेज, वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, उसको नहीं पता है। अगर आप उस एंगर के सामने खुद एंगर होना शुरू करोगे तो उसको लाइसेंस मिल जाएगा कि अब एंगर तो कर सकते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड सिली रीजंस, बेस्ट वे इज टू इग्नोर। उसको पता चलना चाहिए कि ये मेरा टेम्पर टेंट्रम्स या मेरा एंग्रीनेस या मेरा रक्कस, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। देन ग्रेजुअली दे विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि ये सही बात है। स्टबननेस हो गया, ये सब चीज़ें, यानी इसका मतलब है कि आप अगर ये चीज़ें करोगे, उसके स्लीप के बारे में भी आपको शेड्यूल क्रिएट करना है। और वो शेड्यूल का
कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए कि बेटा फ्रॉम संडे नाइट टू थर्सडे नाइट आपको 10 बजे सो जाना है और सुबह 6 बजे उठ जाना है, एंड दैट इज अ रूल इन द हाउस. देयर इज नो अदर वे थिंग्स हैपन. सी इन द इनिशियल स्टेज यू ऑल्सो माइट हैव टू शट एवरीथिंग, टीवी इंटरनेट मोबाइल सब बंद करके आपको भी 10 बजे सोना शुरू करना पड़ेगा. ग्रेजुअली उसको आदत हो जाएगी उसी टाइम पर सोना और उस टाइम पर उठने की. और अगर उसको 12 1 2 बजे तक अगर एंटरटेनमेंट मिलता रहता है तो वो सोने क्यों जाएगा. लेकिन अगर आपने उसका शेड्यूल फिक्स कर दिया और ग्रेजुअली वो उस शेड्यूल में सेट हो गया, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि बेटा फिर सैटरडे संडे आपको जो करना है करिए, बट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे दिस इज योर शेड्यूल एंड वी ऑल सी टू इट दैट यू फॉलो. Make your child partner in your parenting and then see your parenting happens very nicely. There is one more question from Parimala Ashok Kumar. Very nice question. My daughter is 7 years old and she is much talented. She can solve even critical puzzles and she always wants to know new things and all good. So the child is very intelligent. He wants to do everything very nice and she is very happy about it. But a drawback in her is while answering any subject, if we point out that she is wrong, then after that she will not continue. That though we ask her to look and read, she will be sitting simply. If I scold her, she will cry, though I don't touch her. I think she is afraid of me or any reason. I am not able to guess why she is behaving like this. Two things that is there. One, she is very intelligent. Second, she has not learned how to accept failures. What I would suggest you is create small activities in the house in which you see that she fails and then teach her how to come up away from that failure and become successful. So 2 3 times let her fail and then let her success. Then create another activity in the house in which you see that she fails. See, majority of the time, we as an adult are afraid of failures. But failure is a part of anybody's life. And if you see and read the biodata or a life story of the successful people, they have failed more time than even an ordinary people has tried. So if he is successful in a one area, he must have failed 10 to 20 times. And majority of the failed people will not even try for 5 times. So we have to make our child learn the life skill, which is we call it as tolerance, accepting no and failure. बिकॉज अगर हमने ये चीज़ अभी से नहीं सिखाई तो लाइफ में तो वही होने वाला है. एंड उसी वजह से पिछले 20-25 साल से बच्चों में एंग्जाइटी, फिर स्ट्रेस, फिर डिप्रेशन, फिर सुसाइडल आइडेशन एंड देन सुसाइड इंक्रीज हो रहा है. बिकॉज हम सब कुछ उनको प्लेटर में दे रहे हैं कि बेटा लो ये रहा, बेटा लो ये रहा. किसी के लिए उसको ज़रा भी एफर्ट नहीं करना पड़ता है. डोंट डू दैट. इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इज़ नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन. अगर उसने ऐसी कोई चीज़ मांगी है जो उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं रात को 3 बजे जाके ले आऊँगा. लेकिन अगर उसने ऐसी चीज़ मांगी है जो सिर्फ उसका सटाइटी या उसका हैप्पीनेस क्रिएट करता है या सेटिस्फेक्शन करता है, मैं 2 दिन तक उसको वेट कराऊंगा. बिकॉज ही हैज़ टू लर्न टू वेट, बिकॉज पेशेंस क्रिएट्स एक्सीलेंट रिजल्ट्स इन आवर लाइफ. सो अभी से ये चीज़ हमें बच्चों को सिखानी है. एंड दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल लाइफ स्किल्स. अगर ये अभी से उनको पता चल गया कि नो इज़ कॉमन इन लाइफ, आई हैव टू थिंक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. नो, failure is very very common in life. The world is not going to give everything in the platter. We will have to create by our own way of being. So please don't give everything to your child in the platter. I will tell you, अभी किसी बच्चे ने ऐसा घर नहीं देखा जो ये सब देख रहे हैं कि जिनके वहाँ नल चालू करो और पानी नहीं आता है. साल में एक दिन ऐसा क्रिएट करो कि आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, उसको अपना पूरा दिन एक भरी हुई बाल्टी में से निकालना है. एंड देन यू सी नेक्स्ट टाइम वो नल बंद करना भूल नहीं जाएगा. एक दिन ऐसा रखो कि जिसमें पूरे घर में लाइट नहीं है, ही हैज़ टू लिव द लाइफ विथ अ कैंडल. एक टाइम ऐसा करो कि उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेके जाना है, सेकेंड क्लास के डिब्बे में लेके जाना है. देन ही विल रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ योर कार, ही विल इंपॉर्टेंस ऑफ वॉट यू आर डूइंग फॉर दैट चाइल्ड. सो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी करना बहुत ज़रूरी है.
अगर ये चीज़ हम नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो वो बच्चे को आगे जाके चीज़ें नहीं मिलने वाली है, and that is why they become frustrated, they become intolerant, they create anxiety, then depression and everything follows after that. So अभी से अपने बच्चे को, और ख़ास अगर आपका एक ही बच्चा है तो उसको तो इतना पावरफुल करो कि वो खुद आराम से जी जाए अपनी ज़िंदगी। हम लोग प्यार और लाड उसके बीच में कंफ्यूज हो चुके हैं। प्यार और लाड के बीच में एक मामूली भेद रेखा है। अगर आप बहुत ज़्यादा सब कुछ उसको देते रहेंगे तो वो प्यार है, बट आप उसको ठीक से क्या सही है और क्या गलत है वो प्यार से सिखाएंगे भी और प्यार के साथ उसके साथ रहेंगे भी, तो वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होता है और उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे से बड़ा होता है। तो ये एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से करनी है। आयशा आफरीन कहती है कि माई चाइल्ड ओनली प्लेज व्हेन आई सिट विथ हिम एंड प्ले, अदरवाइज ही डज नॉट। हाउ टू मेक हिम इंटरेस्टेड इन टॉयज। अगेन, टॉयज में इंटरेस्ट लेना ज़रूरी नहीं है, आप उनके साथ बैठना बंद कर दीजिए। ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन, वो बोर हो जाएगा और फिर अपने आप वो टॉय में इंटरेस्ट, उसको आप में इंटरेस्ट है, इसलिए जब आप बैठते हो तब खेलता है। तो आपको अगर ऐसा चाहिए कि वो अपने आप खेले तो यू हैव टू क्रिएट दैट हाफ एन आवर जिसमें आप अवेलेबल नहीं हो। आई टेल पेरेंट्स ऑल्सो कि अगर आप बहुत चिपके रहते हैं अपने बच्चे के साथ तो अपना भी स्कैरसिटी क्रिएट करिए, तो आपका भी इंपॉर्टेंस बच्चे को क्रिएट होगा, एंड देन ग्रेजुअली दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर प्रेजेंस एंड दे विल रियलाइज व्हाट हैपन्स इफ यू आर नॉट अराउंड। सी, हम कहते रहते हैं कि बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो हमें उनके फ्रेंड हो जाना चाहिए, फ्रेंड ज़रूर होना चाहिए, बट पेरेंट होना बंद नहीं करना है, बिकॉज उस बच्चे के लिए हम ही पेरेंट है, फ्रेंड्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे। यही गलती हो जाती है कि हम फ्रेंड हो जाते हैं लेकिन पेरेंट बनना बंद कर देते हैं और फिर सारे इश्यूज उसके साथ क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। सो एक रुचिका बिहानी का एक क्वेश्चन है, हाउ टू इंट्रोड्यूस सेकंड न्यूबॉर्न टू माय एल्डर सन so that he binds with baby well and does not feel secluded. Very important questions, because this is very common whenever there is a child who is around 3 years, and if a second child appears just out of the blue moon in the house, the first child's behavior will be altered very drastically. Because अब तक क्या हो रहा था कि एक ही बच्चा, उसके ऊपर सबका ध्यान, सबका प्यार, सबका समय उसको मिल रहा था, लेकिन अभी कोई सेकंड ऐसा आया जिसके ऊपर वो उसका टाइम ले रहा है, मेरे मम्मी का या पापा का उसका समय ले रहा है, मेरा उसके ऊपर, मेरे ऊपर ध्यान उतना नहीं जा रहा है। दैट चाइल्ड विल स्टार्ट क्रिएटिंग सच एन एनवायरनमेंट एंड एक्टिविटी अराउंड कि सब लोग उसके ऊपर देखना शुरू करें। तो जब भी आपको पता चला कि यू हैव कंसीव्ड फॉर द सेकेंड चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड को आप फर्स्ट टाइम सोनोग्राफी जब भी जा रहे हो तो साथ में लेके जाइए, एंड स्टार्ट शोइंग द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड विच इज इनसाइड योर वूम्ब, and that will be the earliest time you can introduce your child. Start talking about that child's presence and what is happening around, so that the whole process the child is with you. You will have to create that child that there is going to be someone who is coming and he will be part of our life. अगर ये उसके दिमाग में है फ्रॉम द बिगिनिंग तो वो एक तो एक्सेप्ट अच्छे से करेगा। फिर भी ऑल द चांसेस है कि वो फर्स्ट चाइल्ड का बिहेवियर थोड़ा सा बदलने वाला है। सो यू हैव टू बी रेडी, योर हाउस हैज टू बी रेडी कि ये कुछ ऐसा करने वाला है जो पहले नहीं करता था। जब सेकेंड चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो उसकी केयर में फर्स्ट चाइल्ड को लेना शुरू करें, उसके गोदी में लीजिए अपनी हाजिरी में 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट। अगर उसका नैपी चेंज करना है तो वो नैपी उसको लाने के लिए बोलिए, ताकि जो उसका केयर करना शुरू करेगा ग्रेजुअली वो बॉन्डिंग होना शुरू हो जाएगा। थर्ड थिंग, जब भी दोनों रो रहे हैं, जैसे फर्स्ट चाइल्ड ऑफ 3 years एंड सेकेंड चाइल्ड ऑफ 3 months इज क्राइंग टुगेदर, पहले हमें वो 3 साल के बच्चे को उठा के उसको चुप कराना है। हमारा रिफ्लेक्स ये होता है कि हम वो 3 महीने वाले बच्चे को उठा लेते हैं, वो 3 साल वाला तुरंत नोटिस करता है कि मुझे नहीं उठाया, उसको उठा लिया, वो स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग फ्रॉम दी अदर चाइल्ड। सो हम अगर पहले बच्चे का उसका जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके सेकंड बच्चे को केयर करेंगे तो वो अच्छा महसूस करेगा कि नहीं, अभी भी मैं ही फर्स्ट हूँ। तो ये चेंजेस आपको अभी से लाना शुरू करना पड़ेगा जब भी आप कंसीव करते हो या जब आप डिलीवर करना चाहते हो। तो ये करेंगे तो द फर्स्ट चाइल्ड विल एक्सेप्ट द सेकंड चाइल्ड वेरी वेल and you will be very happy taking care of those children. Now another set of question is related to the current pandemic. How to take care of the children
during this pandemic? That is one question by Kavita Kakade. There is another question, how to manage screen time for kids during these lockdown days. That is by Shirin Parvin. And Akshatha Bajpai says that current lifestyle is harmful for children's mental growth, right? See, Corona is unprecedented time, which has happened maybe once in our lifetime. Last it has happened in was 1918 to 1920. And this is really testing time for everyone, including children. In our brain, there is one area, if you stay in a same environment for long period of time, that area is getting stimulated, and that can create ongoing negative thoughts, and that can really affect our psychology. So what I would say, just take care of yourself and your child, but don't stop living. We have to accept a new normal or new better now, that we have to live like this maybe for next 6 months, because we are not sure when the vaccine will be available or when the pandemic will go. So I'll give you 4 pillars to take care of yourself and your child to prevent you getting infected through coronavirus. The first and very important pillar is mask. Whenever you go out, or you go out with a child who is more than 2 years old, wear a proper mask. Maybe a mask with has 2 or 3 layers, or a surgical mask, or not required. But if you have F95, you can definitely N95 mask you can wear. But you have to be very careful. After wearing the mask, you should not keep on touching the mask, because the viruses which are not going in your body is trapped outside of your mask. So if you keep on touching the mask, your hands are getting infected with that viruses, and then you touch your mouth or nose or eyes, you get infected. Second, don't remove it down, because this part is also exposed. It might have some viruses. Then you again brought back to your nose and mouth. You are infecting that. Don't keep on writing on your right ear or left ear, because that is also not good. जब आप बाहर निकलो तब से घर पर वापस नहीं आओ, तब तक मास्क को निकालना नहीं है. आपको थोड़ी सी घुटन महसूस होगी, थोड़ा सा सांस लेने में परेशानी होगी, बोलने में परेशानी होगी, लेकिन एक बार कोविड वार्ड में जाके वो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ पेशेंट देख के आ जाना. आप भूल जाओगे कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा. बिकॉज वो ऑक्सीजन की कमी, वो सांस लेने में परेशानी, वो वेंटिलेटर इज extremely 100 times more painful than wearing simple mask and taking care of yourself. So that is first pillar. Second is your hand hygiene. जब भी आप खांसते या छींकते हो तो आप अपने कोनी पे करेंगे या हैंड करचीफ में करेंगे. कहीं पे भी टच हो गया तो इमीडिएटली उसको अच्छे से सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर देंगे, और वेरी फ्रीक्वेंटली 20 सेकंड तक अपने हैंड को प्रॉपरली वॉश करते रहेंगे. और अभी वो हैंड वॉशिंग टेक्निक आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो दैट ऑल. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आपको लगे कि आप ठीक फील नहीं कर रहे हो, हल्का सा फीवर जैसा है या कफ कोल्ड है, तो 2-3 दिन तक कंप्लीट रेस्ट कर लीजिए. अगर उससे ठीक नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करके अपना टेस्ट करा लीजिए. ठीक है. और लास्ट इज सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग. कहीं पे भी बाहर गए हैं, दूसरे इंसान से कम 6 फुट की दूरी रखिए. बिकॉज अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में हैं जहाँ पे सब बंद है, वहाँ अगर 2-3 लोग भी इन्फेक्टेड होंगे और आप अगर 10 मिनट उस जगह पे रह गए, तो आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो ये 4 पिलर से अपने आप को बचाने के लिए बच्चों को भी इसको सिखाएं. ये आप क्यों कर रहे हैं, जस्ट ताकि आप उसको अच्छे से बचा सके, उसकी लाइफ अच्छी रह सके. फिर भी हमें नेगेटिविटी में नहीं जीना है. पॉजिटिविटी कैसे हम करेंगे? सबसे पहले कोरोना के न्यूज़ को पूरे दिन देखना बंद कर दीजिए. 15 मिनट सुबह आपने डिटेल देख ली, कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है, कोई नया डायरेक्टिव आया हुआ है, रात शाम को आपने 15 मिनट देख लिया, बस. पूरे दिन व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पे या फेसबुक की यूनिवर्सिटी पे या फिर न्यूज़ चैनल की यूनिवर्सिटी पे या अपने प्राइवेट किसी में उसको देखते नहीं रहना है. सो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन. सेकेंड, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल.
कई सारे लोग ऐसे होते हैं, वो वही इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते रहते हैं कि ये कोरोना को हो गया और इसका ये हो गया, ये उनसे भी दूरी बनाए रखिए। तीसरा, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन क्या है? अवेयरनेस ऑफ योर ओन सेल्फ, अपना खुद का अवेयरनेस। शुरुआत आप सिर्फ अपने सांसों के ऊपर ध्यान देने से कर सकते हैं, एंड यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। अपने बच्चों को भी उसके साथ लीजिए, उसको भी वो कराइए, तो उससे भी उनका अच्छा रहेगा। फोर्थ थिंग इज क्रिएट एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। इतने सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, इतने सारे लोगों की डेथ हुई है, हम अभी स्वस्थ हैं। यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल टू दी गॉड, ग्रेटफुल टू दी यूनिवर्स, ग्रेटफुल दैट आप अपने घर पर हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपकी रूटीन लाइफ चल रही है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, स्वस्थ हैं। बी ग्रेटफुल। शुक्रिया शुक्रिया जितना करेंगे उतनी हैप्पीनेस ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड लास्ट, रोज दिन में एक बार किसी एक इंसान का कुछ मदद करिए। कंट्रीब्यूट इन दैट पर्सनस लाइफ, कुड बी एनी वन। आपकी अगर फ्लैट का सिक्योरिटी है या कोई रास्ते चलने वाला इंसान है, आपको लगता है कि उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत है, जस्ट प्यार से बुला के वो चीज़ उसको दीजिए। एंड यू सी व्हेन यू कंट्रीब्यूट टू अदर पीपल्स लाइफ यू फील हैप्पी। सो अगर ये 5 चीज़ों का ख्याल रखेंगे, ये कोरोना का टाइम बहुत इजीली ख़त्म हो जाएगा। आप अपने पीडियाट्रिक डॉक्टर से बात करके बच्चे के लिए कोई इम्यूनिटी बूस्टर के लिए कोई मल्टीविटामिन्स या विटामिन सी या विटामिन जिंक शुरू कर सकते हैं। गर्म पानी पिला सकते हैं। घर का बना खाना जो अभी हम वही कर रहे हैं, उसमें भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सीज हैं, जिसमें बच्चे को मिनरल्स मिलते हैं, आयरन मिलता है, मल्टीविटामिन्स मिलते हैं, उसको प्रोटीन्स मिलता है, जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। फ्राइड चीज़ें और मैदे की चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए। ये सब चीज़ें करेंगे तो हम कोविड दौरान भी बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। अगर आपके बच्चे का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो उसके शेड्यूल के साथ अपना शेड्यूल सेट करिए, ताकि आप उसमें भी उसको अच्छे से सपोर्ट कर पाएँ। अगर ये चीज़ भी आप करेंगे तो अच्छा सा टाइम आपको आपके बच्चे के साथ मिलेगा, और यू विल सी द चाइल्ड्स ग्रोथ। तो उसमें आप अच्छे से उसके साथ रह सकते हैं। सो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। अगर ये आप करेंगे तो ये कोरोना का टाइम भी चला जाएगा, बिकॉज ये जाने ही वाला है, कोई चीज़ रुकी नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ बंद हो गया, 2 हुआ बंद हो गया, लास्ट पैंडेमिक हुआ ख़त्म हो गया। सो हो सकता है 6 महीने 1 साल में हम वापस जो रूटीन में थे उस रूटीन में चले जाएंगे, या इस रूटीन को नॉर्मल रूटीन या एक्सेप्ट करके जीना शुरू कर देंगे। उस दौरान हमें अपनी साइकोलॉजी का और अपने बच्चों की साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स मिल रही है। विपिन कुमार कह रहे हैं वेरी इंटरेक्टिव इन्फॉर्मेटिव सेशन। राजीव द्विवेदी कह रहे हैं वंडरफुल टॉक। राधिका वेरी नाइस। चेतन कह रहा है वेरी वेल सेड सर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटेड टू टीनेजर चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे 11 से 18 साल के बीच में हैं, उनके पेरेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले धारिनी कह रही है माई 2 चिल्ड्रन आर इन टीनेज एंड आई गेट एंग्री ऑन देम फ्रिक्वेंटली, हाउ शुड आई टैकल देयर बिहेवियर। जो मैंने पहले बताया, इग्नोर प्रेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज इज स्टेज विथ ऑल चिल्ड्रन टिल 18, और ये आप कर सकते हैं इनके साथ, लेकिन टीनेजर्स को आई जस्ट कम बैक टू यू। ममता कह रही है माई सन 11 year old गेट्स टू मच इमोशनल, बिकम हाइपर एंड हैज कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी लॉस, व्हाट कैन बी डन। मोहिनी गोयल कह रही है कि माई चाइल्ड इज ऑफ 13 years एंड नाउ ही इज गेटिंग टू अग्रेसिव एंड नॉट इवन फोकसिंग ऑन स्टडीज। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज द सिचुएशन, कैन यू प्लीज एडवाइज मी फॉर सम मेजर। See, teenage parenting is again a very specialized area, and we will have to learn. And that is why, in the beginning, I have said that we will have to take training for this kind of parenting in 21st century. Unless we will get trained through this kind of webinar or workshops or one-on-one counseling and become powerful in this 21st century with tools and techniques, people will definitely not be able to parent powerfully. हम ये समझ रहे हैं कि जनरेशन वाइज बच्चे बिगड़ रहे हैं, सॉरी, it is the parenting which is deteriorating over generations, and that is why children are of this kind in this generation also. If I give my example, my son is 19 and a half, as I have said. He is studying in first year MBBS here in Ahmedabad itself, and जब वो पढ़ रहा था तभी से उसको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई थी
और वो उसका चॉइस था कि मुझे मेडिसिन में जाना है। तो 6-7 स्टार्टर से उसको बता दिया गया था और प्यार से बताया था कि बेटा कितने भी पैसे मेरे पास होंगे, अगर आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपके मेरिट नहीं होंगे जिसमें आपको एडमिशन मिलेगा, तो हम आपको मेडिसिन में नहीं भेजेंगे। यू विल हैव टू स्टडी हार्ड, get the merit and then get your admission, and he did that because we were very clear about this. Second, till 17 उसने अपना नीट का एग्जाम नहीं दिया, तब तक उसके पास स्मार्टफोन नहीं था। जब तक उसने 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया और वो एलिजिबल नहीं था टू व्हीलर ड्राइव करने के लिए, उसके पास टू व्हीलर नहीं था। और ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 18 सेंचुरी या 19 सेंचुरी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको आपके बच्चे के पास मिरेकल्स चाहिए, आपको अपने लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, वो कंट्रोल करके। सबसे पहला इश्यू है हम रोल मॉडलिंग नहीं करते हैं। हम बच्चे से ऐसा बिहेवियर चाहते हैं वो शायद उनने देखा ही नहीं है, और ऐसा बिहेवियर नहीं चाहते हैं जो हम हमेशा करते रहते हैं। जैसे खुद गुस्सा हो जाना, खुद हाथ उठा लेना, खुद अग्रेसिव हो जाना, खुद झूठ बोलना, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट नहीं पहनना, या टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट नहीं पहनना, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा ये सब करे। वो कैसे हो सकता है? बच्चा हमेशा रोल मॉडल ढूंढता रहता है, तो हम पेरेंट बच्चे के रोल मॉडल क्यों नहीं बन सकते? अगर मैंने अपनी लाइफ उस तरीके से जी, तो वो देख के उसको जिएगा। हम बहुत कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा सुनता नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है आपका बच्चा सुनता नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आपका बच्चा सुनता नहीं है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना, वो सुनता नहीं है लेकिन वो आपको देख ज़रूर रहा है। वो ज़्यादातर 80-90% ऑफ द चीज़ें आपको देख के सीख रहा है, नहीं कि आप उसको जो बोलते हो। तो सबसे पहले हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा कि मेरा स्क्रीन टाइम, मेरा एंटरटेनमेंट टाइम, मेरा फिजिकल एक्टिविटी, मेरी एक्सरसाइज, मेरा खान पान का रहन सहन, मेरा सोने का टाइम, मेरा उठने का टाइम अगर मेरा आइडियल होगा, तो ही मेरा बच्चा वो आइडियल फॉलो करेगा। And then the child will be like the way I want my child to be, or what he should be, potentially he is. So role modeling is first and foremost for any parenting, very very critical in teenage parenting. So सबसे पहले अपने आप को बदलिए, बच्चा अपने आप बदलने वाला है, उसको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज रोल मॉडलिंग। सेकेंड प्रिंसिपल इज 3L। टीनेज पेरेंटिंग में ये 3L अगर आपने समझ लिया, आपकी लाइफ ऑल्टर हो जाएगी। सबसे पहला L है लव। बच्चे के साथ कभी भी बात करो, वो भले ना 50 साल का आपका बच्चा क्यों नहीं है या 5 साल का छोटा क्यों नहीं है, हमेशा वो प्यार से बात करनी है, जो प्यार से आप अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ बातें करते हैं या 9 महीने वाले बेबी के साथ बात करते हैं। आप अपने ही बच्चा जब वो 2 महीने का था और रात को आधा घंटा घंटा 2 घंटा रोता था, तो क्या आप उसके ऊपर हाथ उठाते थे कि चुप हो जा, क्यों रो रहा है उतना? नहीं, आप प्यार से उसको लेके घूमोगे, भले रात को आपको जागना पड़े, भले आपको वो पूरी रात सोने ना दे, फिर भी आप उसको शांति से ही चुप कराएंगे। तो वही चीज़ हम एक 5 साल के बच्चे को या 15 साल के बच्चे के साथ क्यों नहीं कर सकते? वही प्यार से अगर आप बात करना शुरू करेंगे, वही प्यार से उसके साथ रहना शुरू करेंगे, वो भी वही प्यार के साथ आपके साथ रहना शुरू करेगा। सो फर्स्ट एल इज लव। सेकेंड एल इज यू हैव टू बी वेरी, गिव देम लैटिट्यूड, उसको फ्रीडम देनी है। लेकिन उसके बीच में जो सेकेंड लव आता है वो है लिमिट्स। हम हमारे बच्चे के साथ लिमिट्स क्रिएट नहीं करते हैं कि बेटा ये आप कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो। और वो नो मैंने बोला क्यों जब कब सीखेंगे? जब जिद करेगा तो भी नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपकी घर की लिमिट है कि कोई भी टीनेजर बच्चा बाहर जाता है तो वो 10 बजे से पहले घर पर आ ही जाना चाहिए, और अगर वो उस रात 10:30 बजे आया तो नेक्स्ट डे कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए कि जिस कॉन्सिक्वेंस को उसको पसंद नहीं आएगा। अगर वो आ गया 9:30 बजे, तो डेफिनेटली उसके उस बिहेवियर का प्रेज करके उसको क्रिएट करना है। तो स्मार्टफोन, टू व्हीलर्स, आइडियली आई वुड रिक्वेस्ट के 17-18 ईयर्स तक आप मत ही दीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बच्चे पीयर प्रेशर में नहीं आते हैं, हम पेरेंट्स उसके पीयर प्रेशर में आ जाते हैं कि सब बच्चे के पास स्मार्टफोन है और मेरा बच्चा वो सिंपल नोकिया फ़ोन लेके जा रहा है या वो सैमसंग फ़ोन लेके जा रहा है जिसमें स्क्रीन ही नहीं है। हमें पीयर प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को आप जो दिखाएंगे, जो सिखाएंगे, वो सीखने वाला है। तो ये लिमिट्स
हर एक एरिया में कपड़े कैसे कैसे पहनते हैं। अगर पूरा समाज एक तरह का कपड़ा पहनता है, ज़रूरी नहीं है मेरा बच्चा भी वही तरह का कपड़ा पहनेगा। वो उसके लिए ठीक है, वो वही कपड़े पहनेगा, बिकॉज दैट इज़ वॉट द वैल्यू ऑफ माई फैमिली, वैल्यू ऑफ माई कल्चर, जो हमें हमें बच्चों के साथ सिखाना है। कोई भी नई चीज़ एक जन शुरू करता है और हम उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं सोचे समझे बगैर। वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरे पास गोल्ड, अगर वो उसका बिस्किट होगा तो वो नुमाइश करूंगा, मैं सबको दिखाऊंगा कि मेरे पास गोल्ड बिस्किट है? नहीं, मैं उसको लॉकर में रखूंगा। तो हम क्यों सब दिखे ऐसे कपड़े पहन के घूमने देते हैं अपने बच्चे को, और फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। टीच ऑल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल टू योर चाइल्ड, इवन इफ इट इज अ बॉय और अ गर्ल। लिमिट में एक चीज और आती है, और वो है आपका बच्चा किसी भी एज का हो, उसको घर में आपके साथ कुछ ना कुछ काम में हाथ बटाना है। He should feel proud of helping you in the kitchen, proud to helping you in the household chores। और वो एक दो चीज़ें उसको अभी से सिखा दो, बेटा ये तेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माई सन 10th एग्ज़ाम 12th एग्ज़ाम और अभी भी फर्स्ट MBBS में है, दो तीन चीज़ें घर में उसको करनी है तो उसी को करनी है, और वो और कोई नहीं करेगा, भले वो चीज़ ना हो। और फिर अगर नहीं होती है तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। सो ये आप क्रिएट करेंगे तो वो बच्चा प्राउड फील करने लगेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते। वो बॉय हो तो भी वो गर्ल के काम करेगा, खाने में भी हाथ बढ़ाएगा, चीज़ें भी ठीक रखेगा, और प्राउड भी फील करेगा। एंड यू विल सी दीज एक्टिविटीज आर स्ट्रेस बस्टर्स फॉर चिल्ड्रन। वो अच्छा फील करते हैं आपको हेल्प करके, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं मैंने नहीं किया अब बच्चे को क्यों करवाऊं, या मैंने किया अब बच्चे से क्यों करवाऊं। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है उसके साथ। सो लिमिट में ये करेंगे। थर्ड इज लैटिट्यूड। इस सारी लिमिट में उसको फ्रीडम दे दो, उसको जो करना है वो करने दो। अगर उसने अपना पढ़ाई का शेड्यूल बना दिया है तो आप उसके पीछे मत लगे रहो कि तू पढ़ रहा क्यों है, पढ़ता क्यों नहीं है, पढ़ता क्यों नहीं है, पढ़ता क्यों नहीं है। उसको बताओ पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जब मैंने सिद्धार्थ को बता दिया मेरे सन को कि MBBS में एडमिशन के लिए आपको मेरिट में मार्क्स लाना पड़ेगा, मुझे एक भी दिन उसको बोलना नहीं पड़ा बेटा बेटा पढ़ाई करने बैठो। हाँ, ऑब्जर्व करना है उसका शेड्यूल ठीक है, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कहाँ पहुँचा हुआ है, कहीं लैग नहीं है, कहीं अटक नहीं रहा है, उस टाइम मैं हूँ। लेकिन अगर हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते रहेंगे, उसके ऊपर हुवर होते रहेंगे, इट डज नॉट वर्क। वी हैव टू गिव देम लैटिट्यूड। उसको डिसीजन लेने दो। जैसे इस वीकेंड, अभी तो जो वैसे कोई ऐसा कोई टाइम नहीं है, लेकिन अगर वीकेंड में हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो हमें अपने बच्चे को ऑप्शंस देना है, बेटा चाइनीज़, पंजाबी या इंडियन, कौन सा खाना है आपको। अगर आप पंजाबी चूज़ करोगे तो ये 3 ऑप्शन है आपके लिए होटल के लिए, और उसमें से एक में जाओ। अब क्या हुआ, आपने उसको ऑप्शन में कंट्रोल कर लिया, होटल में कंट्रोल कर लिया, लेकिन डिसीजन उसने लिया। उसको इतना प्राउड होगा कि आज पूरा फैमिली मैंने जो डिसीजन लिया उस जगह पे खाना खाने गए, और मुझे जो चाहा वो खाना खाए। एंड देन दिस गिव्स हिम लीडरशिप क्वालिटी, एंड देन ग्रेजुअली दे स्टार्ट रियली बिहेविंग लाइक अ लीडर, एंड यू डोंट नो हाउ मच पोटेंशियल दे हैव। ये लव लिमिट और लैटिट्यूड में यू हैव टू एक्सेप्ट योर चाइल्ड। जब आप अपने बच्चे को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करेंगे तो प्यार कर पाएंगे, प्यार करेंगे तो लिमिट बना पाएंगे, और लिमिट होगी तो लैटिट्यूड दे पाएंगे, एंड थिंग्स विल मूव फैंटास्टिकली वेल। एंड लास्ट, यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग टू योर चाइल्ड। टीनेजर्स बच्चे पेरेंट्स से बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम हमेशा जजमेंटल होते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, हमेशा कंप्लेन करते हैं, हमेशा कंपेयर करते हैं, हमेशा उनके एक दो सेंटेंस को इवाल्यूएट करना शुरू कर देते हैं। अगर 15 साल का लड़का स्कूल से आके घर पे कहता है कि मम्मा वो थर्ड बेंच पे जो लड़की बैठती है ना वो मुझे बहुत पसंद आ रही है, और घर में पूरा रामायण महाभारत शुरू हो जाता है कि तू प्यार करने जाता है कि पढ़ाई करने जाता है। हमें सोचना चाहिए कि 14 साल का 15 साल का लड़का, उसको एक लड़की पसंद आ रही है, अब एज ही है जब उसको अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होगा, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। अगर वो ऐसा आके कहता है कि तो खुश हो जाइए कि उसको लड़की पसंद आ रही है, लड़का नहीं, उसका ओरिएंटेशन रिलेटेड टू सेक्स इज नॉर्मल, या इट इज़ ऑन द राइट ट्रैक। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू योर चाइल्ड। अगर उसने ऐसा कहा तो उसके साथ बैठिए, उसको बात करिए कि बेटा ठीक है, आई अंडरस्टैंड, 15 साल पे आपको कोई लड़की पसंद आए वो मैं समझ सकता हूँ,
लेकिन ये एज नहीं है कि आप वन और वन रिलेशनशिप क्रिएट करिए। कल आप उसके साथ क्लोज हो जाएंगे, उस लड़की को कोई और लड़का पसंद आ जाएगा 6 महीने के बाद, तो आपकी साइकोलॉजी का क्या इश्यू होगा। आप एक ग्रुप बनाइए जिसमें वो लड़की भी हो और 3 लड़कियां हो, आप हो और आपके 3 फ्रेंड्स हो, आप साथ में सब कुछ करिए। एंड देन यू सी, वो फिर प्यार करेगा, शादी करना चाहेगा ना, तो भी वो आपको बताएगा। लेकिन अगर आपने पहले दिन उसको झाड़ दिया ना, तो वो भाग के शादी कर लेगा, लेकिन आपको बताने नहीं आने वाला है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम झिक झिक ना करें। जजमेंट, इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन, कंप्लेन, कंपैरिजन, एंड देन यू सी लिसनिंग, उसको सुनिए। टीनेजर्स बच्चे 80% ऑफ अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई उसको सुनने वाला मिलता है। अगर आपने उसको सुन लिया अच्छे से, एंड देन यू सी हाउ मिरेकुलस रिलेशनशिप विल बी। टीनेजर्स बच्चे के साथ आपको एक अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल प्ले भी करना सीखना है। अगर आपने ये सीख लिया, तो भी वो बच्चा आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा। आर्ट ऑफ लिसनिंग के ऊपर एक बहुत अच्छी पोएम एक टीनेजर ने लिखी हुई है। उसका उसको मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, और पता चलेगा कि लिसनिंग कैसे क्रिएट करना है बच्चों के साथ जो टीनेजर एज में है। When I ask you to listen to me, I am not asking for your advice. When I ask you to listen to me, I am not asking for your explanations. When I ask you to listen to me, I am not asking you to solve my problems. When I ask you to listen to me, I am not asking for your judgments. And when I ask you to listen to me, I am not blaming you for my problems. See, think about how we listen. Majority of the time, we start advising, we start explaining, we start solving their problems, we become judgmental, or we become guilty that I am responsible for the problems. Actually, the teenager is saying, when I ask you to listen to me, I am asking you to be with me, to hear me, to let me work things out for myself. When I ask you to listen to me, I am asking you to trust me, so I can feel free to share with you my feelings, my hopes, my concerns, my questions, my confusions. Me and I, in turn, will listen to you. So when they come and tell something, don't jump into any conclusions. Just listen. आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सुन लीजिए। अगर आप सुन भी लेंगे तो वो 80% अपनी चीज़ें खुद ठीक कर सकता है, और फिर अगर वो पूछे कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, गिव योर एडवाइस। एंड देन सी योर रिलेशनशिप विथ योर टीनेजर विल बी ऑल्टर्ड इन 15 days to a month's time. So role modeling, 3L, love, limit and latitude, and effective listening of your child without becoming judgmental. Just listen to be in your child's world, and you see these principles can alter the way you do parenting to your child. Think about it, वो बच्चा अगर अपनी चीज़ें खुद करने लगेगा तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी। मैं कभी कभी क्वेश्चन पूछता हूँ पेरेंट्स को कि आप पेरेंट क्यों बनते हो, तो वो ऐसा कहते हैं कि खुश होने के लिए। लेकिन जब मैं पूछता हूँ आप खुश हो, तो कि नहीं, हमारे जितना स्ट्रेसफुल कोई नहीं है। तो वो स्ट्रेस हमने ही क्रिएट किया हुआ है। अगर आप दो ही चीज़ें करेंगे कि बच्चा जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है और वो खुद रिस्पॉन्सिबल है और उसको करने में मज़ा आ रहा है, आपका पेरेंटिंग ख़त्म हो गया। वो खुद आगे कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो यू विल हैव टू डू टीनेज पेरेंटिंग लाइक दिस, एंड देन थिंग्स विल बी अमेजिंग इन योर लाइफ। Last, there were few questions about the special need children like autism, ADHD, or like some child has some physical involvement. Now this require a full session because this is a really different area of parenting. But I'll just give you three principles. One, you have to be very happy that you are parenting a ADHD or autistic or having some physically disabled child, because heads off to you all parents, those who are taking care of these children. So first of all, take care of your own self first. कभी कभी ऐसे बच्चों की ख्याल रखने में हम अपना खुद का ख्याल नहीं रखते हैं। सो योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर स्पिरिचुअल हेल्थ, योर रेस्ट, योर फूड, हम अपना खुद अच्छे से ख्याल रखेंगे, हम अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। दूसरा,
मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दिस चिल्ड्रन, उनको अपने जो डिसऑर्डर से उनसे परेशानी नहीं होगी, लेकिन उस डिसऑर्डर की वजह से हम जब उनको ओवर पैम्परिंग करना शुरू कर देंगे तो उस ओवर पैम्परिंग से उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और वो परमानेंट हो जाएगा। सो हमें ओवर पैम्पर नहीं करने हैं इस बच्चों को। जैसे दूसरे बच्चे को हम ये प्रिंसिपल्स जो मैंने बताए, जो शुरू में मैंने बताए, इग्नोर दोज बिहेवियर विच आर नॉट हार्मफुल टू यू एंड योर चाइल्ड, praise the behavior which is good, and create negative consequences for those behavior which are harmful to the child or to people around you, and love, limit, latitude, role modeling, actually listening, and third, get in contact with a good developmental pediatricians. Now these are the pediatricians who have specialized in children who have developmental disorders like autism, ADHD, learning disabilities. There are many other things which they are really specialized in that. Get in connect with them, create an excellent environment around the child, पूरा एक रूल बुक बनाइए, उसको थेरापीज दिलाइए जो ज़रूरी होती है, और देन यू कैन सी योर चाइल्ड इज़ रियली ग्रोइंग वेरी वेल। बट उसके साथ अपने पेरेंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको साइड पर मत रखिए, अपना ख्याल रखिए, और ये जो प्रिंसिपल है उस तरीके से नॉर्मल बच्चे का जैसे हम ख्याल रखते हैं उसी तरीके से डिसिप्लिन के साथ, प्यार के साथ, लिमिट क्रिएट करके उसका ख्याल रखेंगे, तो जब वो इन चीज़ों से बाहर आ जाएगा तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स बच्चे के ऊपर नहीं होगा। तो हमें ऐसा करके ये चीज़ें करते रहनी है। तो जो भी क्वेश्चंस थे, आई हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस इन दिस मे बी अराउंड 50 मिनट्स। I am very happy. Thank you so much for remaining with me all throughout the past 1 hour. I hope whatever I have said or shared with you, ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन आपके काम नहीं आने वाली है जब तक आप उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करेंगे। शुरुआत में डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज वो आपका रूटीन नेचर नहीं है। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये कैसे होगा, ये तो कुछ और अलग हो रहा है, बच्चा बिगड़ रहा है। डोंट वरी, कंसिस्टेंटली अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो आपके मसल भी डेवलप हो जाएंगे, एंड देन चाइल्ड विल स्टार्ट चेंजिंग हिज और हर बिहेवियर, एंड यू विल हैव अ न्यू चाइल्ड इन 15 डेज। सो किसी ने सही कहा है, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो ही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने की शुरुआत तो कीजिए, अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। नमस्कार।